Hello, all my dear learners of class 10 ICSE, and today we'll be starting with maths heights and distances chapter. So इस chapter में दो words आ रहे हैं, heights and distances. Okay, so now let us understand what does it means. Like mathematical terms में what does it means? Okay, so now I am drawing a right angle triangle because heights and distances comes under trigonometry. So in trigonometry हम लोग ने पढ़ा है it is related to triangles and its measurement, right? And its measurement, and obviously यहाँ पे आपको नाम सजेस्ट किया जा रहा है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस, राइट? मतलब आपको हाइट्स एंड डिस्टेंसेस कैलकुलेट करना है या फिर एसोसिएटेड टू इट some questions will be asked, right? So this is the whole chapter about, okay? And definitely trigonometry ही है ये, right? तो आपको trigonometry के थोड़े से मतलब जो formulas है वो रिवाइज करने पड़ेंगे, but before that we will understand what is meant by heights and what is meant by distances, okay? So like let us consider this is right angle triangle ABC. So as in person or else I am standing at this particular place, okay, which is obviously at a ground level, correct? So if I talk about this angle, तो ये एंगल क्या था? यहाँ पे ये जो एंगल था वो एंगल ऑफ रेफरेंस कह रहे थे हम लोग, है ना? जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे तो इसी को एंगल ऑफ रेफरेंस बोला जा रहा था. तो इसके सामने अपोजिट में जो साइड होता है हम लोग उसको अपोजिट साइड कहेंगे. बट अभी इस वाले चैप्टर में क्योंकि ये हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज हाइट, ओके? और यू कैन कॉल इट एज परपेंडिकुलर आल्सो. सो परपेंडिकुलर हाइट, ओके? सो दिस इज मेंट बाय परपेंडिकुलर हाइट. ये हाइट है, परपेंडिकुलर हाइट है. BC, the one which is opposite side, is the perpendicular height. And now look at this distance. Okay, I'll change the color over this. This distance, the horizontal distance between this A person and the wall of that building or the tower, whatever the tower is there, right? So that distance, this distance is there. No, that is what called as obviously distance, horizontal distance. The horizontal distance. Okay, so the perpendicular height and the horizontal distance. So basically heights and distances is meant by what? Perpendicular height and the horizontal distance. That's it. That's the only thing. And वही चैप्टर में दिया है heights and distances वाले चैप्टर में. तो आपको पहले समझना है कि चैप्टर में क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे जाएंगे, राइट? सो परपेंडिकुलर हाइट एंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के ऊपर ये क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. अच्छा, यही है. हाँ, लेकिन है ना, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस देंगे और आपको क्वेश्चन का जो रेफरेंस डायग्राम है, जो डायग्राम होगा वो बनाना पड़ेगा. तो इसीलिए हमें थोड़ा सा और इसके ऊपर स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए और पढ़ते हैं इसमें. So if I am having this right angle triangle again, but obviously this is a tower. So this is the top of tower. Okay, and this is on the horizontal distance. ये इंसान है, A इंसान, यहाँ पे B है, ये C है. Okay, so when person, now look at this, there is one concept which is called as line of sight. Sight means what? As in जब हम लोग देख रहे हैं, मैं आपको देख रही हूँ यहाँ से ऐसे, तो वो मेरा line of sight है, correct? And let us consider I wanted to see somewhere at the top of the tower, as in टेरेस में मैं देखना चाहती हूँ. तो ये मेरा लाइन ऑफ साइट था अभी के लिए. लाइक नॉर्मली व्हेन आई एम लुकिंग एट यू गाइस, या फिर मैं किसी को देख रही हूँ ऐसे सामने, तो ये लाइन ऑफ साइट होने वाला है. लेकिन जब मुझे टॉप ऑफ द टावर पे देखना है या फिर टेरेस ऑफ द टावर पे देखना है, तो व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू मूव माय हेड लाइक दिस, करेक्ट? मैं ऐसे देख के मैं बात करने वाली हूँ. सो फ्रॉम दिस it now goes like this, right? So this will be the line of sight. So in this particular reference question, ये वाले या डायग्राम में आपको ये जानना है कि ये इंसान टॉप ऑफ द टावर है या टेरेस होगा यहाँ पे. तो this A person is looking at the C person who is on the top of the tower which is terrace. तो लाइन ऑफ साइट ये होगा, है ना? ये होगा लाइन ऑफ साइट which is obviously the this hypotenuse, which is obviously the hypotenuse, right? बट वो इंसान क्या कर रहा है? उसको ऐसे क्या करना पड़ रहा है? ऐसे देखना पड़ रहा है ना. वो इलिवेशन हो रहा है, उसका इलिवेशन हो रहा है. इलिवेशन मतलब वो ऊपर देख रहा है. तो ये जो एंगल है इसे कहेंगे हम लोग एंगल ऑफ इलिवेशन. क्या कहेंगे? एंगल ऑफ इलिवेशन कहा जाएगा, है ना? उसको क्या करना पड़ रहा है? उसका जो
गर्दन है वो ऐसे उसको ऊपर उठा के फिर वो देख के बात करेगा, राइट? सो दैट इज व्हाट वी मेंट बाय द एंगल एट विच, वो कितना उसको गर्दन करना पड़ रहा है ऊपर ताकि वो देख सके। तो लाइन ऑफ साइट अभी ऊपर हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये लाइन ऑफ साइट। So therefore the angle between the horizontal line, which is the horizontal distance, and the line of sight, you call it as angle of elevation. So what is angle of elevation? Angle of elevation is the angular distance. हाँ, कितना angle है ये? Angle between, या angular distance between what? The horizontal distance, ये पढ़ा है हम लोगों ने. AB is what? The horizontal distance and the line of sight, you call it as what? Angle of elevation. This is what the angle of elevation is. Okay, this is as simple as that. So one concept definitely which you will come across like for the whole chapter, which is angle of elevation. ये एक concept आने वाला है बार बार, आपको ये question में भी दिखेगा, ये जो word है क्या? Angle of elevation, ये word आपको question में भी दिखेगा, ठीक है? This is one point. Now second point is, again I'll draw the same diagram. Okay, again I'll draw the same diagram, but as of now, A, B, C, the person who is on the tower, because see, ये A अगर बात कर रहा है ना on the top of the tower, ये ऐसे बात कर रहा था, तो obviously C will also have to look down. C will also have to look down to that person, right, who is standing on the horizontal ground. So this C person is also looking down. So basically when this C person is there, तो उसके लिए नॉर्मल लाइन ऑफ साइट क्या होगा? उसके लिए ये जो मैंने डॉटेड लाइन बनाया ना, वो उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट था, करेक्ट? व्हेन पर्सन इज सी व्हिच इज ऑन द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज टॉप ऑफ द टावर या फिर टेरेस ऑफ द टावर. सो उसके लिए जो नॉर्मल लाइन ऑफ साइट वो क्या है? मैंने जो डॉटेड लाइन से येलो कलर से दिखाया वो उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट है, करेक्ट? बट व्हेन ही इज लुकिंग डाउन, तो वो टेरेस से वो नीचे देख रहा है और अपने फ्रेंड से बात कर रहा है ना, तो उसको क्या करना पड़ रहा है? उसको नीचे अपना गर्दन उसको नीचे करना पड़ रहा है, एंड देन ही विल हैव टू स्पीक टू दैट पर्सन ए, करेक्ट? तो वो कितना नीचे कर रहा है? वो कितना नीचे कर रहा है? दैट एंगल इज कॉल्ड एज व्हाट? एंगल ऑफ डिप्रेशन. एंगल ऑफ डिप्रेशन. इट इज एज सिंपल एज दैट, राइट? इट इज एज सिंपल एज दैट. सो दिस पर्सन हु इज ऑन द टॉप ऑफ द टावर विल हैव टू लुक डाउन. तो उसको नॉर्मल लाइन ऑफ साइट से, ये उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट था, लेकिन जो अभी इंसान जो नीचे ग्राउंड लेवल पे है, बिकॉज दिस पर्सन इज ऑन द टॉप ऑफ द टावर, राइट? तो उसको नीचे ऐसे देख के फिर बात करना पड़ेगा, करेक्ट? तो वो डिप्रेशन हो रहा है. डिप्रेशन मतलब नीचे कितना वो देख रहा है, करेक्ट? सो दिस इज नाउ लाइन ऑफ साइट. ऑब्वियसली द लाइन ऑफ साइट गोज लाइक दिस, लाइन ऑफ साइट. दिस इज द लाइन ऑफ साइट, करेक्ट? सो ये लाइन ऑफ साइट है और ये उसका नॉर्मल लाइन ऑफ साइट था, लेकिन अभी उसको गर्दन झुका के ऐसे बात करना पड़ेगा नीचे, है ना? तो वो कितना झुका रहा है, वो कितना उसको वो डिप्रेस हो रहा है. सो दैट इज व्हाट द लाइन ऑफ डिप्रेशन. Okay, I hope so now you are able to understand these two concepts. One is angle of elevation, the other is angle of depression, right? These two points are really very important. These two angles are very important. These are nothing but our angle of references. ये सेम कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री में भी एंगल ऑफ रेफरेंस से ही सारे पॉइंट्स पढ़े थे, है ना? एंगल ऑफ रेफरेंस क्या था, उसके हिसाब से ही हम लोग बोलते थे ये अपोजिट साइड होगा, या फिर ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, एडजेसेंट साइड होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा. सो ऑब्वियसली वहां पे सिर्फ बोला जा रहा था एंगल ऑफ रेफरेंस, उस एंगल को. यहाँ पे नाम दे दिया है एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, nothing else, exactly it is same. Okay, but whenever you are making like diagrams, you have to be careful, because statement based questions होता है, बहुत rarely वो लोग diagram देंगे. अगर diagram दे दिया, well and good, so not a problem at all. But then even if they have not given the diagram in the question, आपको समझ में आना चाहिए आप diagram कैसे बनाओगे, इसके ऊपर पूरा question निर्भर है, right? So now without wasting time, no, let us start with. अच्छा, one more thing to notice, as in now look at this. ये भी एक like the horizontal distance is there, this is also horizontal distance, and this is what, this is kind of a this transversal. So basically ना ये एंगल और ये जो एंगल था, दोनों को ना मैंने थीटा बोला है. तो आपको याद रखना है हमेशा कि एंगल ऑफ
elevation and angle of depression, ये दोनों ना इक्वल होने वाले हैं, सिर्फ पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, द ओनली थिंग इज पर्सपेक्टिव इज डिफरेंट, राइट? हाउ? बिकॉज सी व्हेनेवर दिस पर्सन इज ऑन अ ग्राउंड लेवल ना, तब वो ऊपर देख रहा है ना, तब उसको बोला गया एंगल ऑफ एलिवेशन, बिकॉज वो अपना गर्दन ऐसे ऊपर करके he'll have to elevate it and then he'll have to see, right? So perspective has got changed. This person who is on the top of the tower will have to depress, ऐसे नीचे जाके फिर वो ऐसे देख रहा है, that's why it has been called as angle of depression, but it's one and the same, it's nothing, the only perspective has got different. ये कहां से ये इंसान ग्राउंड लेवल पे है इसीलिए वो एंगल ऑफ एलिवेशन, ये इंसान टॉप ऑफ द टावर पे है इसीलिए एंगल ऑफ डिप्रेशन, बट एंगल्स दोनों सेम है, आर इक्वल इन वैल्यू। तो उनका जो वैल्यू होगा, मतलब अगर ये 30 डिग्री है कंसीडर करो, तो ये भी 30 डिग्री ही होने वाला है। कौन सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट है? तो ये ट्रांसवर्सल है और दोनों ऑल्टरनेट एंगल्स है, ऐसे करके हमने इसको प्रूव कर दिया कि दोनों इक्वल ही होने वाले हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन के वैल्यूज जो है ना वो इक्वल ही होने वाले हैं, ठीक है? आई होप सो अभी तक मैंने जो थियरी समझाया आपको आपके लिए यूजफुल था, एंड आप यही थियरी यूज करके आपको क्वेश्चंस भी सॉल्व करने हैं, ठीक है? अच्छा, वन मोर पॉइंट टू नोटिस कि इसमें भी आपको ना ये जो चार्ट है, लाइक स्टैंडर्ड एंगल्स, एवरी टाइम दे आर नॉट गोइंग टू आस्क स्टैंडर्ड एंगल्स, राइट? सो ऐसे जब दूसरे नॉन स्टैंडर्ड एंगल्स जब पूछेंगे, लाइक sin 25 अगर पूछा गया, तो आपको ये चार्ट ही यूज करना पड़ने वाला है, you will have to use the chart, you don't have any other choice, आपके पास ये चार्ट होगा, they'll provide you with this chart, वो एग्जाम में मिल जाता है ना ये बुक, लॉग बुक, तो उसमें ये चार्ट होते हैं, तो यूज करना पड़ता है, okay? So accordingly I have just put the PDF of this from your textbook only, तो जैसे ही हम लोग देखेंगे क्वेश्चंस तो आपको भी समझ में आएगा कि कैसे सॉल्व करना है इसको। चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट विद दिस फर्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ अ ट्री इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन। अच्छा, यहाँ पे ना डायरेक्टली दे हैव गिवन एंगल ऑफ एलिवेशन, पूछा है कि आपको सॉल्व करना है उसका वैल्यू निकालना है, ठीक है? क्या क्या दिया है देखो, हाइट ऑफ द टावर इज √3 टाइम्स द लेंथ ऑफ इट्स शैडो, ओके? सो गिवन में क्या क्या होगा, इफ दिस इज माय सॉल्यूशन, सो height is √3 times the length of shadow, okay? Length of shadow, so height, so I know this is my height, correct? A, B, C, okay? So let us now consider, let length of shadow, which is my horizontal distance, be x. So height क्या होगा? Height is going to be √3 times of x. This length of shadow I'm considering it as x, correct? So this height is going to be √3 of x. So if this is x, then this is going to be √3 of x, okay? This is my √3 of x value and this is my x value. They are asking for angle of elevation, this is my angle of elevation, correct? This is my angle of elevation. So if they are asking for angle of elevation, I can now understand that there should be a relationship between the horizontal distance and the perpendicular height, correct? So which is that relationship, like from the trigonometric identities? अच्छा, trigonometric identities में आपके पास ये formulas होते थे, ठीक है? कौन से formulas होते थे? sin theta used to be perpendicular distance upon hypotenuse, ओके? cos थीटा यूज टू बी बेस मतलब ही क्या, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, हाँ? तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज वाज द लाइन ऑफ साइट, ओके? दिस वाज द फॉर्मूलाज, आई एम जस्ट ट्राइंग टू रिकॉल। tan थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन बेस, फोर्थ वाज cot theta. Cot theta is reciprocal of tan theta, so just reciprocal कर दीजिए। Fifth is sec theta. Sec theta is reciprocal to cos theta, right? So hypotenuse upon base. And last, sixth one is cosec theta. Cosec theta was reciprocal to sin theta.
राइट. आई होप सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. सो यही यूज होने वाला है अभी, ये बार बार यूज होने वाला है. ठीक है, तो जिसको याद नहीं है तो आप वापस से इसको याद कर लीजिए. ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे, दिस वर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज. ओके, सो बेसिकली दिस इज नॉट न्यू, कुछ नया नहीं है, ये चैप्टर बिल्कुल नया नहीं है. ये इसको नाम बस अलग दे दिया है, थोड़ा सा रूप इसका चेंज कर दिया है और थोड़ा सा एक लेवल बढ़ा दिया है. क्यों? क्योंकि स्टेटमेंट्स दे दिए है ना, तो स्टेटमेंट से आपको डायग्राम बनाना है, राइट. तो थोड़ा सा एक लेवल डिफिकल्टी उन्होंने बढ़ा दिया और कुछ नहीं किया, राइट. तो ये आपको पता है ऑलरेडी, ये पता है, इसी का नॉलेज आपको अभी यूज होगा. अभी देखिए ये कौन से ये एंगल निकालना है मुझे. सो दिस हैज टू बी माय एंगल ऑफ रेफरेंस एंड दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज base, right. So this is my perpendicular and this is my base. A trigonometric wait one second. So a trigonometric relationship ratio in which perpendicular and base I have. So look at this, tan theta. Either you can use tan or cot, कोई भी आप यूज कर सकते हो. I'll go for tan. टैन लेना ज्यादा बेटर है. क्यों? क्योंकि आपके पास जो चार्ट होते हैं उसमें आपके पास टैन होता है, कॉट नहीं होता है ना, कॉस होता है, कोसाइन वाले चार्ट होता है, साइन वाला चार्ट होता है ना. तो आप ये नोटिस कीजिएगा. तो आपको टैन लेना यहाँ पे आसान है. सो टैन थीटा, द रिलेशनशिप इज बिटवीन परपेंडिकुलर एंड द बेस, राइट. सो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज माय फॉर्मूला फॉर टैन थीटा. सो अकॉर्डिंगली व्हाट इज परपेंडिकुलर, व्हिच इज √3. So this is √3 into x. तो ये लिखिए यहाँ पे √3 into x और ये है नीचे बेस x, कट हो गया एक दूसरे से. √3 ये tan थीटा आपको मिल गया, tan थीटा का वैल्यू √3. अच्छा, ये अभी ना स्टैंडर्ड वैल्यू है, दिस इज स्टैंडर्ड एंगल और दिस इज लाइक यू नो यू हैव लर्नड अबाउट दिस कि व्हेन दिस tan थीटा इज गोइंग टू बी √3. इफ यू आर नॉट एबल टू रिकलेक्ट, चलिए विल डू वन मोर थिंग व्हिच इज द स्टैंडर्ड एंगल्स. ओके, स्टैंडर्ड एंगल वाला कर लेते हैं एक बार रिवीजन. स्टैंडर्ड एंगल्स में आपको क्या क्या करना होता है? This is 0 degree. Then we have to write down 30 degree. Then we have to write down 45 degree. Then we have to write down 60 degree. And last is 90 degree. Okay. And here first one I'll consider sine theta. Or we'll write down here, we'll write down sine theta over here. So sine 0, if it is sine 0, then answer is 0. If it is sine 30, the answer is 1/2. If it is sine 45, then answer is 1 upon √2. If it is sine 60, the answer is √3 upon 2. If it is sine 90, the answer is 1. Correct. So this was for sine theta. If I write down second trigonometric identity, which is cos theta, I'll write down over here. And आपको पहला तो लर्न करना होता है, फर्स्ट साइन थीटा यू हैव टू लर्न. फिर उसके बाद में ये कैसे जाएगा, ये रिवर्स में जाएगा. तो मतलब जो साइन 90 था वो cos 0 बन जाएगा. तो यू जस्ट हैव टू डू द रिवर्स में लिखना है आपको ये. Then this comes out to be same. Then this 30 will go here, it will become 60, cos 60. This sin 0 will become cos 90, which is 0 value. And third one I'll write down here, which is tan theta. Okay, I'm only interested for this 3. बाकी के 3 जो है वो भी आप निकाल सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए I'm just interested to write down only for 3. Okay, because the charts also what do we have, तो वो भी ये 3 के लिए होते हैं charts. Tan theta होता क्या है? It is the quotient between sin and cos or ratio between sin and cos. So 0 upon 1 is 0. 1/2 upon 1 upon √3 comes out to be 1 upon √3. 1/√2 upon 1/√2 comes out to be 1. √3/2 upon 1/2, which is √3. 1 upon 0 not defined, or you can write down infinity also. It can be anything. Okay, you write down infinity or not defined. These were standard angles. Standard angles मतलब कौन से? ये 30 डिग्री, 45 डिग्री, 0 डिग्री, ये standard angles है और इसके वैल्यू पता होते हैं. So tan theta, see look at this.
आई हैड √3, करेक्ट। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में ये √3 मिला था। कब मिला था? tan के कौन से वाले वैल्यू पे मिला था? ये देखिए, ये tan है, तो tan के कौन से वाले वैल्यू पे मिला है मुझे? 60 डिग्री पे मिला है ना। तो ये स्टैंडर्ड एंगल मुझे अगर याद होगा, सो देयरफॉर मैं क्या लिखूंगी? tan 60 is equal to √3, therefore tan theta is equal to tan 60, मतलब थीटा कितना आ गया? मतलब थीटा आ गया, थीटा इज 60 डिग्री, थीटा इज 60 डिग्री। सो एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन कितना मिला मुझे? 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन मिल गया। तो मेरा ये सब वर्किंग जो है ये मेरे कॉन्सेप्ट बेस्ड के ऊपर है, मतलब मैंने अगर कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कर लिया तो मेरा ये वर्किंग भी बहुत अच्छे से हो जाएगा, है ना। बस इतना ही करना है आपको इस वाले पूरे चैप्टर में, ठीक है। कुछ इंफॉर्मेशन गिवन होता है और कुछ जो हमारे लिए ऑलरेडी हम लोग ने पढ़ा हुआ है वो होता है, तो दोनों का मिक्स करके आपको आंसर फिर निकलेगा, ठीक है। तो आपको दोनों का नॉलेज यूज करना है। चलिए, वैसे ही सेकंड वाला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं क्या दिया है। The angle of elevation of the top of the tower from the point on a ground and at a distance of 160 meter from its foot is found to be 60 degree. Find the height of the tower. Okay, see, angle of elevation is found to be कितना? 60 डिग्री, ठीक है। तो मतलब क्या दिया है उन्होंने? ऑलरेडी ये एंगल ऑफ एलिवेशन है जो 60 डिग्री दिया है, ठीक है। सो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, दिस इज टॉप ऑफ द टावर, टॉप ऑफ टावर, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 60 डिग्री है, हाँ, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ ग्राउंड। सो दिस इज दैट पॉइंट ऑन अ ग्राउंड and at a distance of 160 meter from its foot. Okay, so this is the foot of the tower, this is top of the tower, this is foot of the tower, foot of tower. So how much is the distance? The distance is 160 meter. So this is 160 meter, this distance, okay, this distance is 160 meter. What are they asking? To find the height of the tower. Height of the tower is this height, this they are asking to find, okay, they are asking to find the height. It is as simple as that. See, from the question itself you are able to make your own diagram. एक बार diagram हो गया, बाकी की सारी चीजें आसानी से आ जाएंगी, right? चलिए, so given, so accordingly you can just name it, ये A, ये B और ये C डाल देते हैं, ठीक है। so given क्या है? that is angle of elevation theta is equal to 60 degree, ठीक है। so horizontal distance BC is equal to 160 meter, okay, and to find height AB, okay, so we do have theta, we do have this horizontal distance or a base, ये क्या है? ये बेस भी बोल सकते हैं और ये परपेंडिकुलर है। अगेन सेम थिंग, कौन सा रिलेशनशिप होगा यहाँ पे? जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो था उसमें कौन सा रिलेशनशिप है जो बेस एंड हाइट को इंडिकेट कर रहा है? और रिलेशनशिप बिटवीन अ बेस एंड हाइट, इट्स आइदर tan और cot, करेक्ट। मैं tan के लिए जाने वाली हूँ, करेक्ट। तो tan थीटा, we know tan theta is perpendicular height upon horizontal base, okay, horizontal base. So tan 60 is perpendicular height, I'm not knowing, which is AB, base is 160 meters, okay. Okay, so now what we'll have to do is we'll have to do the cross. So 160 √3 is equal to AB, करेक्ट। मतलब क्या? AB का वैल्यू जो है वो अभी √3 का हम लोग को वैल्यू पुट करना है। सो √3 वैल्यू होता है 1.732, सो you'll have to do the multiplication. See, 10 and decimal point is also there, okay. First what I'll do is 1732 into 16, मैं मुझे नॉर्मली ऐसी आदत है, मैं वो करके दिखा रही हूँ आपको। 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 16 7 जा 112 and
1 2 3 zeros and 16 ones are 16. So 2 16 11 1 7 7 2. Okay, I had this 1 0 more, so 1 0, and ये कितना था 3 decimal point था, so 277.12. Answer is 277.12 meters. Okay, this is my answer. AB मतलब हाइट ऑफ द टावर, तो हाइट ऑफ द टावर मुझे मिला 277.12 मीटर्स, ये मुझे मिल गया आंसर. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. See what has been given. Two persons are standing on opposite sides of the tower. Okay, first statement itself we have got to understand कि एक टावर है और ये उसका हॉरिजॉन्टल बेस होने वाला है. ठीक है, और दो लोग खड़े हैं कहां पे, अपोजिट साइड्स पे खड़े हैं, टावर के अपोजिट साइड्स पे. तो ये ए पर्सन है और ये बी पर्सन है, दोनों टावर के अपोजिट साइड्स में खड़े हैं. दे ऑब्जर्व द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर. ये टॉप ऑफ द टावर है, ये लिखेंगे टॉप ऑफ टावर, ये समझ में आता है हमें, ये टॉप ऑफ टावर है. ठीक है, तो एक इंसान जब देख रहा है ऊपर तो उसको एंगल कितना मिल रहा है, 30 डिग्रीज ये एंगल मिल रहा है. जब वो एंगल ऑफ एलिवेशन वो जब ऊपर देख रहा है ऐसे तो 30 डिग्रीज है, और दूसरा इंसान जब देख रहा है तो 38 डिग्रीज है. तो ऐसे यहाँ पे टॉप ऑफ द टावर को देख रहा है तो 38 डिग्रीज है. ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इफ द हाइट ऑफ द टावर इज 50 मीटर्स. मतलब ये जो है वो 50 मीटर्स है, ये हाइट है इसका, टावर का ये हाइट है और ये 50 मीटर्स है. ठीक है, हम लोग इसको भी टॉप ऑफ द टावर को सी दे देते नाम, और यहाँ पे भी नीचे जो है ना ये डी कर देते हैं. तो कितना है, क्या क्या है, ए बी सी डी ऐसे करके हम लोग ने नाम दे दिए. दो ट्रायंगल्स है यहाँ पे, दो अलग अलग ट्रायंगल्स के लिए काम करना पड़ेगा. एक ये ट्रायंगल है मतलब ए इंसान के लिए, और एक दूसरा ट्रायंगल है बी इंसान के लिए, है ना. पूछा गया है, पूछा क्या गया है, दे आर आस्किंग डिस्टेंस बिटवीन देम. डिस्टेंस बिटवीन देम मतलब ए और बी के बीच का डिस्टेंस ये पूछा गया है. ये डिस्टेंस कितना है पूछा गया है. ठीक है, तो चलिए और पर्सन ए, एंगल ऑफ एलिवेशन theta is equal to 30 degree. So therefore in triangle ADC, हाँ, और हाइट क्या है गिवन, ऊपर लिख लीजिए हाइट ऑफ टावर, ये लिख लीजिए आप, आपके लिए भी अच्छा है, 50 मीटर्स है गिवन है ये. ठीक है, इन ट्राइंगल ADC, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा, ये वाला ट्राइंगल. ठीक है, इतना ही ट्राइंगल देखना है आपको. ठीक है, यही वाला ट्राइंगल देखना है आपको. ठीक है, तो क्या होगा, ऑब्वियसली ये अपोजिट साइड है और यहाँ पे ये बेस है, तो हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पे भी tan थीटा ही यूज करना पड़ेगा. tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, DC अपॉन AD. tan 30 है ना, तो tan 30 इज इक्वल टू DC कितना है 50 है, और AD वैसे ही रख दीजिए यहाँ पे. ठीक है, tan 30 कितना होता है 1/√3 होता है, स्टैंडर्ड एंगल है तो मुझे पता है ये वैल्यू, है ना. तो आप क्रॉस कर दीजिए, AD कितना मिला 50√3 मिल गया. √3 का वैल्यू कितना होता है 1.732, आपको याद रखना पड़ेगा ये वैल्यू, तो AD मिल जाएगा आपको. ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 1732 मैं कैलकुलेशन करी हूँ यहाँ पे, और 5 10 1 15 16 1 35 36 3, और ये एक 0 और क्योंकि 50 था और 3 डेसिमल तक जा रहा है वो, तो 86.60 मीटर्स ये वैल्यू मिला मुझे, AD के लिए ये वैल्यू मिल गया. ठीक है, वैसे ही अभी मैं पर्सन बी के लिए भी करूंगी, तो चलिए पर्सन बी के लिए भी करते हैं. पर्सन बी के लिए क्या होगा, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है थीटा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन थीटा इज इक्वल टू 38 डिग्री है. सो इन ट्राइंगल क्या है, ये ट्राइंगल DBC या CBD, ये वाला ट्राइंगल है इस तरफ का, है ना. तो क्या आएगा tan 38 विल बी इक्वल टू
अपोजिट, अभी ये एंगल देखना है ना हमें, तो ये अपोजिट हो गया और ये बेस हो गया, तो DC अपॉन DB। tan 38 कितना है, हमें चार्ट में से देखना पड़ेगा गाइस। tan 38 इज नॉट द स्टैंडर्ड एंगल, राइट? सो tan 38 देखना है मुझे, ये tangents है, तो tan 38 देखना है मुझे, ये 38 है, ठीक है? तो ये 38 का मुझे फर्स्ट वैल्यू देखना है, 0.7813 ये वैल्यू है, क्योंकि जीरो है ना ये, जीरो, सो tan 38.0, सो 0.7813, 0.7813 कितना है ये, 0.7813, ठीक है? DC 50 अपॉन DB पता नहीं है मुझे। अच्छा अभी देखिए प्रॉब्लम क्या हो रहा है, देखिए DB इज इक्वल टू 50 अपॉन 0.7813। डिवाइड करने जाओगे ना तो ये बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, डिफिकल्ट इन द सेंस टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, तो ये मेथड अप्लीकेबल नहीं है, ये मेथड नहीं करेंगे, ठीक है? डिवीजन को अवॉइड करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे, टू अवॉइड डिवीजन, टू अवॉइड डिवीजन क्या कर लेते हैं हम लोग, अभी बहुत ध्यान से देखिए, ठीक है? आपको डिवीजन अवॉइड करना है ना, क्या करेंगे हम लोग, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करेंगे, क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करेंगे, यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? टू अवॉइड डिवीजन यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कैसे यूज करेंगे देख लेते हैं, ठीक है? आपको बताइए tan 38 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बेसिकली होते क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल देखिए यहाँ पे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते क्या है, दैट इज whenever two angles are there, okay, x and y, if these are the two angles, their addition if goes 90 degree, you call it as complementary angles, like supplementary angles and complementary angles। वैसे ये दो एंगल्स है, कोई भी ट्राइंगल में अगर दो एंगल पकड़ रहे हो और उसका एडिशन मुझे 90 डिग्री मिला, सो यू कॉल इट एज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, राइट? सो व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, आई विल जस्ट शो यू ओवर हियर। So complementary angles were in 9th standard also, you have learnt about this. Complementary angles were like tan of 90 minus theta gives me cot theta। मैं डायरेक्टली tan से शुरू कर रही हूँ क्योंकि tan था हमारा इसीलिए, एंड cot of 90 minus theta was tan theta। ओके ये दो हो गए, अभी इसके बाद में एक सेट हो गया ये, अभी एक दूसरा सेट है, sin of 90 minus theta is equal to cos theta and cos of 90 minus theta is equal to sin theta। ये एक सेट हो गया, और इसको प्रूफ करने के लिए ना मुझे और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, हम लोग वापस से ना स्टैंडर्ड एंगल वाला अगर चार्ट भी देखेंगे ना, तो यहाँ पे भी आपको दिखाई दे रहा है कि जो वैल्यू आप sin 30 के लिए है आपका, देखिए ये वैल्यू है sin 30 के लिए 1/2, और सेम वैल्यू 1/2 आपको कब दिखाई दे रहा है, cos 60 के लिए दिखाई दे रहा है ना? तो ये समझ में आ गया हम लोग को कि sin 30 का जो वैल्यू था वो 1/2 था, और cos 60 का वैल्यू जो था वो भी 1/2 था। तो अगर मैं रिलेशनशिप अगर मैं डेवलप करने की कोशिश करूंगी तो इसमें क्या रिलेशनशिप पता चल रहा है मुझे, अगर ये x है और ये y है ना, तो sin x का वैल्यू और cos y का वैल्यू, मतलब x एंड y बोथ आर व्हाट, दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, राइट? सो 30 एंड 60 बस वो sin x cos y वाले फॉर्म में आ जाएगा, है ना? इसीलिए रिलेशनशिप क्या मिला मुझे, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके ये वैल्यू मिल गया मुझे, सो sin एंड cos आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। फाइन, सो आपको ना ये याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का लॉजिक। ओके मैं ये बता रही थी, ये एक सेट हो गया, sin एंड cos आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स टू ईच अदर, एंड द लास्ट सेट इज दैट इज sec 90 minus theta is equal to cosec theta, and cosec of 90 minus theta will be equal to sec theta। ये एक तीसरा सेट हो गया, तो ये सेट 1 आ गया कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, ये सेट 2 आ गया और ये सेट 3 आ गया। ऐसे 3 सेट है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के, तो आपको याद रखना है tan and cot are in complementary angles to each other, right? This is the relationship for complementary angles। मैंने यहाँ पे ये डिवीजन अवॉइड करने के लिए लिखा भी है मैंने, टू अवॉइड डिवीजन
यूज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। तो मुझे ये पता चल गया कि tan एंड cot आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। तो अभी मुझे सॉल्व करना है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं यहाँ पे सॉल्व करती हूँ। क्या कर लेते हैं, okay, so to avoid division we are using complementary angle. In what way? Now see, what was that? Tan 38 is equal to dc upon dv. So tan theta क्या होता है? Tan theta is equal to cot of 90 minus theta होता है। tan के जगह पे लिखोगे cot 90 माइनस ये थीटा है 38, सेम ही रहेगा। हम लोग यहाँ पे कुछ चेंजेस कर रहे हैं? नहीं कर रहे, डीसी अपॉन डीबी ही होने वाला है। यहाँ पे कुछ नहीं चेंजेस कर रहे हैं हम लोग ने, और ये भी कुछ चेंज नहीं है। इट इज वन एंड द सेम, ये कुछ फर्क नहीं है, ये सेम ही है। हम लोग ने बस कॉम्प्लीमेंट्री यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल को ऐड कर दिया है। ओनली वी आर यूजिंग दिस कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कॉन्सेप्ट, नथिंग एल्स। हम लोग ने कुछ यहाँ पे कुछ चेंजेस नहीं किए, ठीक है। तो कॉट ऑफ 90 माइनस 38 कितना हो जाएगा? 90 माइनस 40 50, 50 मतलब 52, सो cot 52 डिग्रीज इज इक्वल टू डीसी अपॉन डीबी। लेकिन आप बोलोगे अरे मैम कॉट का तो चार्ट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे? मैंने कहाँ पे बोला कि कॉट चाहिए मुझे? मैं अभी ये कौन सा रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल वाला रिलेशनशिप यूज करती हूँ। तो कॉट के लिए क्या आ जाएगा? 1 अपॉन tan 52 डीसी अपॉन डीबी। अभी देखिए मैजिक, tan 52 तो मेरे पास है चार्ट में, राइट। tan 52 देख लेते हैं चार्ट में क्या है। tan 52 ये tan था, 52 ये 52 है, 1.2799 1.2799 कितना है? 1.2799। डीसी कितना है यहाँ पे? डीसी 50 है, और डीबी अभी आप देखिए क्रॉस कीजिए क्या हो रहा है। डीबी इज इक्वल टू 50 इंटू 1.2799, है ना, मिल गया। देखो मल्टीप्लीकेशन में आ गया, है ना। जो आपको डिवीजन वाला जो था वो अवॉइड कर दिया मैंने। डिवीजन थोड़ा सा मुश्किल होता है ना, टाइम कंज्यूमिंग होता है, और फिर चांसेस भी होते हैं कि सही निकला नहीं निकला, पता नहीं। मल्टीप्लीकेशन तो सबके लिए आसान है, तो बस एक यहाँ पे यूज करना है हम लोग को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का ट्रिक, बस यही ट्रिक है, और ये हमेशा यूज करना है हमें, ठीक है। अगर डिवीजन को मुझे अवॉइड करना है तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करने पड़ेंगे। आई डोंट हैव चॉइस। मुझे ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से मेरा आसानी हो गया है, ये आंसर मुझे मल्टीप्लीकेशन में आ गया। ओके, सो विल हैव टू डू द मल्टीप्लीकेशन which is 12799 into 5, 45, 4, 49, then 4, 39, 3, 10, 13, 1, 6, 6, 3, 9, 9, 5, 0 and 4 decimal points. So 63.995 is your answer. 63.995. ओके, एंड फाइनल आंसर जो है, फाइनल आंसर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ये क्या था आपका? डीबी था, ठीक है। मतलब आपका ये वैल्यू जो था ये डी, ये कितना आ रहा है? एडी 86.6, और ये वैल्यू आ रहा है 63.995, ठीक है। तो बस ऐड करना है डिस्टेंस बिटवीन पर्सन ए एंड बी इज इक्वल टू 86.6 एंड 63.995। ये कुछ नहीं है, मतलब 0 0 है वो। बस ऐड कर दीजिए 5 9 5, ये 1 आ जाएगा 0, और ये 7 मतलब 150, 150.595 कितना आ रहा है? 150.595, ये आंसर आ रहा है आपका, ठीक है। ये आंसर है इसका, इन दोनों को एडिशन कर देना है, तो आंसर इतना मिल रहा है 150.595। आई होप सो आपको समझ में आ गया। पहले हम लोगों ने क्या किया? पहले हम लोग ने एडी ये निकाला, फिर डीबी निकाला। डीबी निकालते समय पे हमें डिवीजन आ रहा था, तो मुझे डिवीजन नहीं चाहिए था। अवॉइड करने के लिए मैंने क्या यूज किया? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने दिखाया आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का, है ना। तो ये सब कॉन्सेप्ट्स है, आप जब सॉल्व करोगे ना तो और आपको समझ में आ जाएगा।
तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करना ही चाहिए, ये वाला क्वेश्चन। और बेसिकली ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे मैंने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यूज करके आपको दिखा दिया है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से मैं दिखाती हूँ आपको। उस क्वेश्चन में जो था, अगर ये मेरा 36 डिग्रीज है, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए मैं क्या करूंगी, ये 36 है तो कितना आता है, 36 इज माई कॉम्प्लीमेंट, मतलब ये 36 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर ये tan थीटा था तो क्या लिखेंगे, tan 36 लिखेंगे। लेकिन ये कॉम्प्लीमेंट्री नहीं है, तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा, cot ऑफ 90 माइनस 36 करना पड़ेगा मुझे। वो कितना आ जाएगा, cot ऑफ 36, मतलब 90 माइनस 36 कीजिए यहाँ पे, 154 है ना, कितना आ रहा है 54। कॉट में आ रहा है, कॉट में नहीं चाहिए होता है तो उसके बाद क्या करोगे आप, रेसिप्रोकल कर दोगे। क्या करोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे, तो कॉट का क्या बन जाएगा, 1/tan 54 बन जाएगा। तो ऐसे करके ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट होता है। ये क्यों यूज करते हैं हम लोग, टू अवॉइड डिवीजन, टू अवॉइड डिवीजन, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, आप याद रखिए, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट हम लोग डिवीजन को अवॉइड करने के लिए कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अनफिनिश्ड टावर फ्रॉम द पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर्स फ्रॉम इट्स बेस, डिस्टेंस ऑफ, तो डिस्टेंस दिया है 80 मीटर्स फ्रॉम द बेस इज 30 डिग्रीज। हाउ मच हायर मस्ट द टावर बी रेज्ड so that its angle of elevation at the same point may be 60 डिग्री। ओके, देखिए क्या क्या है, ये ग्राउंड लेवल है, एक अनफिनिश्ड टावर है, हाँ ये पॉइंट है उसका, अनफिनिश्ड टावर का मतलब वर्किंग चल रहा है, इसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है। अनफिनिश्ड टावर का एक जो पॉइंट है उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री आ रहा है फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द बेस। तो अगर ये पॉइंट है वो ए, तो ये जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर्स बोला गया है। और ये वो पॉइंट है कि जहां पे अनफिनिश्ड टावर है, तो यहां से अगर देखा जाएगा तो थीटा कितना आ रहा है, 30 डिग्रीज, ये थीटा आ रहा है। ऑब्वियसली ये जो अनफिनिश्ड टावर है वो आगे बढ़ाएंगे, ऊपर उठाएंगे इसको, तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी बढ़ेगा, है ना। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बढ़ेगा, तो वो कितना होना चाहिए, 60 डिग्रीज होना चाहिए, एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्रीज आना चाहिए, ऐसे ही बोला गया है। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है, ए बी सी और ये डी। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या आएगा, दो ट्राइंगल आने वाले हैं। तो पहले कौन से के लिए लिखेंगे, we'll write it down first for the unfinished tower. So for unfinished tower, theta is 30 degree. So in triangle, okay, and what they have given, base they have given, na, base or distance, horizontal distance is equal to how much it is, 80 meters they have given. ओके, सो इन ट्राइंगल, ये जो येलो कलर से मैंने दिखाया अनफिनिश्ड है, ये क्या है, यहाँ पे लिखिए चाहिए तो, इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन कि ये अनफिनिश्ड टावर है, ये अनफिनिश्ड टावर, अनफिनिश्ड टावर। ठीक है, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, what do we have base and obviously we'll need BC, which is the height. Okay, so tan again, tan 30 will be equal to BC upon AB. tan 30 होता है 1/√3, BC कितना होता है, BC पता नहीं है हमें, AB कितना है 80. So again, see now, once again this headache. So now what we'll do is, instead of using this 1/√3, क्योंकि अगेन यहाँ पे डिवीजन है 1.7, मुझे नहीं करना है यहाँ पे भी, I can't do this, डिवीजन नॉट अलाउड, मैं करने ही वाली नहीं हूँ डिवीजन। तो अभी 1/√3 मैंने स्टैंडर्ड एंगल लिया था ना, ये मत ले लो, उसके जगह पे क्या ले लो, ये नहीं करना है। ठीक है, ये इतना मत करो, उसके जगह पे आप क्या करोगे, tan 30 सेम मैं लिख रही हूँ, BC अपॉन AB। क्या लिखेंगे अभी, tan 30 जो है ना, ये 1/√3 नहीं लेना है, इसके जगह पे चार्ट में जाइए,
tan 30 कितना है देखिए, tan 30 कितना है 0.5774, 0.5774। क्या लिखोगे आप? 0.5774 BC अपॉन AB कितना है 80। अभी देखिए आराम से आपको क्या मिल रहा है, आप बोलोगे अरे मैम आपने तो वो कॉम्प्लीमेंट्री पढ़ाया था अभी अभी, अरे लेकिन तुम लोग थोड़ा दिमाग यूज करोगे ना, तो जो भी इजी है ना वो करो। ऐसा थोड़ी जरूरी है कि मैंने अभी बोला यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है तो कॉम्प्लीमेंट्री यूज करना है, नहीं वैसा नहीं है। कि जो भी इजी लग रहा है ना, सोल्यूशन शुड बी इजी फॉर यू। आपके लिए कैसे आप आसान कर सकते हो ना, आपका जो क्वेश्चन दिया है उसके ऊपर है पूरा का पूरा। ठीक है, आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझना है और उसको सॉल्व करते रहना है। 80 है, so multiplying it with 8, 4 is 32, 3, 7 8 is 56, 59, 5, 56, 61, 6 and 46. So 461920 and 4 decimals, so 46. I've got my answer. Okay, कितना मिला मुझे BC? 46,190 ये मिला मुझे BC। ठीक है, अभी ये अनफिनिश्ड टावर के लिए था, अभी फिनिश्ड टावर के लिए, ये किसके लिए था? अनफिनिश्ड टावर। सो फॉर फिनिश्ड टावर तो कितना अभी मुझे उठाना है ना उसको, ताकि मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो 60 मिल जाए। सो कितना है नाउ? थीटा इज 60 डिग्री। सो क्या करेंगे, ये वाला ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल? ए बी डी, बड़ा वाला ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ए बी डी। ठीक है, तो कितना अभी ये सेम है, बेस है और ये हाइट है, BC इज द हाइट। अगेन tan 60, tan 60 इज इक्वल टू BD अपॉन AB। Okay, tan 60 what do we have? √3 we have। BD I'm not knowing। AB 80। हाँ अभी यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है, √3 ना, मतलब 1.732 होता है, इंटू 80 कर दीजिएगा तो ये BD हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 1732 इंटू 8, 16, 1, 25, 2, 56, 58, 5, 138, 138, 560 is equal to BD, 3 decimal. Okay, I've got my answer, 138.56. This is my answer for BD. Now what are they asking कि how much higher must the tower be raised, है ना, कितना ऊपर, ये पूछा गया, this has been asked, DC has been asked, so therefore DC is equal to BD minus of BC। so 138.56 minus of 46.192, ये आपको सब्ट्रैक्शन का वैल्यू है वो निकालना है, 138.56 एंड 46.192, ये सब्ट्रैक्शन कर दीजिएगा। सो ये 8, ये कितना आएगा? ये 10, तो ये 6 और ये 3 और यहाँ पे 2 और 13, 9, 92.36 मीटर्स, ये DC का वैल्यू, ये पूछा गया आपको, मिल गया आपको आंसर। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। ओके चलिए, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ मैन स्टैंड्स 9 मीटर अवे फ्रॉम flagpole. He observes that an angle of elevation of top of the pole is 28 degrees and angle of depression of the bottom of the pole is 13 degrees. Calculate the height of the pole. Okay, now see, look at this. I'll draw a diagram first. Okay, if you know what is flagpole, अगर ये फ्लैग है, ठीक है, और ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होगा and one person is there, that person is standing over here like this. So what has been given? Okay, so what has been given? See, a man stands 9 meter away from the flagpole, so this person is standing 9 meters away from the flagpole.
He observes that angle of elevation of the top of the pole. So this is the top of the pole, right? This is top of pole. So how much is the angle of elevation, which is, so from over here, when he is looking at this, the angle of elevation is 28 degrees. And when he is looking at the bottom of the pole, you see from over here, इसका line of sight ऐसे है, तो ये angle of elevation हो गया है ना, ये ऐसे देख रहा है, और वो नीचे देखने के लिए ऐसे देखना पड़ेगा, झुक के देखना पड़ेगा उसको, तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, 13 डिग्रीज एंगल ऑफ डिप्रेशन है बॉटम ऑफ द फ्लैग पोल। ये ऐसे क्वेश्चन दिया है। अच्छा आप ये मत करो, आप, मैं आपको समझाने के लिए मैंने किया है इसको। हम लोग नॉर्मल जो ट्राइंगल वाला डायग्राम है वो कर लेते हैं, चलिए ठीक है। सिनेरियो ये दिया था, ट्राइंगल वाला डायग्राम कर लेते हैं। तो ये था एंगल ऑफ एलिवेशन, अगर मैं थीटा बोल रही हूँ, ये 28 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन होने वाला है। थीटा 1 बोल देंगे तो भी चलेगा, थीटा 1 आप बोल दोगे तो भी चलेगा, ठीक है। ये टॉप ऑफ पोल है, टॉप ऑफ फ्लैग पोल, और ये बॉटम है, तो यहां से वो देख रहा है, तो बॉटम ये ऐसे नीचे देख रहा है, थीटा 2 विच इज 13 डिग्री, ठीक है। तो ये इंसान यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और इनके बीच का जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस है कितना, दैट इज 9 मीटर्स अवे। तो ये जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर्स है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 9 मीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा नामकरण कर देते हैं, ए बी सी डी, ये नामकरण हो जाएगा, ठीक है। तो अभी दो ट्राइंगल्स है, यहाँ पे ये 90 डिग्री होने वाला है, ये भी 90 डिग्री होने वाला है, सो दो ट्राइंगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। और पूछा गया है टोटल हाइट ऑफ द पोल, मतलब ये पूरा जो है इसके बारे में पूछा है, ये हाइट ऑफ द पोल है, ये है हाइट ऑफ पोल, ये है आपका हाइट ऑफ पोल। तो मतलब आपको ना ए बी अलग से निकालना है, बी सी अलग से निकालना है, ठीक है। तो गिवन मैंने तो डायग्राम निकाल दिया है यहाँ पे, ठीक है, तो लिख लेते हैं। सो फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पोल 28 डिग्रीज है। इन ट्राइंगल, पहले ट्राइंगल का नाम लिखिए ताकि आपके लिए भी सॉर्टेड रहेगा, ये ए बी डी, ए बी डी, ठीक है। क्या होगा, एंड डेफिनेटली यहाँ पे भी सेम है, परपेंडिकुलर हाइट एंड द हॉरिजॉन्टल बेस सेम है, tan, सो tan 28 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन बी डी, ठीक है। बी डी कितना है, 9 मीटर्स है, ए बी पता नहीं है, 28, tan 28 देखना है मुझे, वापस से मुझे चार्ट पे जाना पड़ेगा, टैंजेंट है, ठीक है, और टैंजेंट का 28 डिग्री, ये देखिए 0.5317, 0.5317, जीरो पॉइंट 5317 मल्टीप्लाई ही होगा यहाँ पे, 5317 इंटू 9 इज इक्वल टू ए बी, 5317 9 जा डू मल्टीप्लीकेशन, 9 7 जा 63, 6 15 1 27 28 2 एंड 45 47, सो कितना आ रहा है, ए बी इज इक्वल टू 4783, कितने डेसिमल, 4 डेसिमल पॉइंट है, तो ये 4.7 आ रहा है, ठीक है। ए बी मिल गया आपको, ये आपका ए बी का आंसर है। ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन के लिए। एंगल ऑफ डिप्रेशन के लिए भी देखेंगे, ठीक है। फॉर एंगल ऑफ डिप्रेशन, जो एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया है इन ट्राइंगल, कौन सा, नीचे वाला ट्राइंगल जो है वो डी बी सी, डी बी सी, टैन, देखिए यहाँ पे भी ये बेस है और ये अपोजिट है उसके, है ना, ये रेफरेंस एंगल अगर मैंने पकड़ा तो ये अपोजिट साइड आ रहा है, सो tan 13 विल बी इक्वल टू BC अपॉन DB,
tan 13 देखना पड़ेगा। सो tan 13 कहाँ पे है, सेम चार्ट में जाएंगे, tan 13 देख लेते हैं। tan 13 ये है 0.2309, 0.2309। ओके 0.2309। BC कितना है पता नहीं है, DB 9 है, मल्टीप्लीकेशन ही होगा 0.2309 इंटू 9, डू द मल्टीप्लीकेशन, 2309 9 जा ये 81, ठीक है, फिर ये 27 2 18 20 and 4 decimal points. So BC is going to be 2.0781. This is your BC. What are they asking? The total height of pole. Okay. Height of pole is AB plus BC. कितना होगा देखिए, 47853 and 2.0781, 4 13 1 16 1 8 6.86 6.8634 मीटर्स, ये आंसर है आपका। ठीक है, चलिए मिल गया आपको आंसर। देखिए ये हाइट कितना है AC, आप लिखिए यहाँ पे AC, आप लिखिए, ये आपका क्वेश्चन था पूछा गया, जो यही पूछा गया है। आई होप आपको समझ में आ गया अभी, है ना। अलग अलग टाइप के आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसके ऊपर आपको समझना है, डायग्राम बहुत अच्छे से समझना है पहले बात तो, क्योंकि आप डायग्राम में गलती कर दोगे ना तो आंसर ही गलत आ जाएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। See, two people standing on the same side of the tower in the straight line with it measures the angle of elevation of the top of the tower as 25 degree and 50 degrees respectively. If the height of the tower is 70 meters, find the distance between the two people. Now see what has been given. Like दो लोग हैं और दोनों लोग एक ही टावर को देख रहे हैं, है ना, एक ही टावर को दोनों लोग देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली जो दोनों लोग हैं ना वो एक ही लेवल पे नहीं है, मतलब एक ही डिस्टेंस पे नहीं है, आगे पीछे है वो। ठीक है, तो आपको दो एंगल दिए हैं यहाँ पे, दोनों एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, क्योंकि वो ऐसे ऊपर देख रहे हैं, टॉवर की तरफ देख रहे हैं, है ना। तो दो एंगल ऑफ एलिवेशन दिए, एक बड़ा एंगल ऑफ एलिवेशन है, एक छोटा एंगल ऑफ एलिवेशन है। तो आपको नोटिस करना है, ये बात हमेशा याद रखना है कि जो छोटा एंगल ऑफ एलिवेशन है वो दूर होगा। कैसे, मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए यहाँ पे। See, whenever I am taking a triangle, no. See, look at this, and when I'm see the distance increases, no, look at this. The angle also not it becomes more steeper. It will become more steep. So angle becomes small. ये angle ना छोटा होगा, small angle. तो जितना ज्यादा दूर होगा ना, जितना ज्यादा दूर, वो एंगल छोटा बनते जाएगा। जितना ज्यादा दूर होगा ये टॉवर से, जितना ज्यादा दूर उतना एंगल छोटा। ठीक है, you will have to remember this because see out of this two, 25 degree and 50 degree, now we need to note this, right, because they are on the same side. तो अगर दो अलग अलग साइड पे होता ना, so doesn't matter, क्योंकि दो अलग अलग साइड है तो आप वो मैनेज कर सकते हो और वो आंसर सही आएगा। लेकिन यहाँ पे ना आंसर आपका गलत हो जाएगा। फिर आपको ये ध्यान में रखना है हमेशा कि जो जितना दूर जाएगा ना, मतलब जितना ज्यादा दूर होगा तो एंगल छोटा बनते जाएगा, स्मॉल एंगल होते जाएगा। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पे 25 डिग्री एंड 50 डिग्री में छोटा कौन सा है 25, तो ये यहाँ पे होगा और ये 50 डिग्री यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, आई होप सो आपको ये समझा। ठीक है, ये स्मॉल एंगल है यहाँ पे, और पूछा क्या गया है, देखिए हाइट ऑफ द टावर दिया है जो 70 मीटर्स है, ये हाइट ऑफ द टावर है, 70 meters is the height of the tower. Okay, and what are they asking? Distance between these two people. So this person and obviously this person. Okay, these are these two people because angle of elevation यहाँ पे दिया ना, एक 25 डिग्री है, 50 डिग्री है, और ये दोनों टॉप ऑफ द टावर को देख रहे हैं, ये दोनों भी टॉप ऑफ टावर को देख रहे हैं। ठीक है, तो इसीलिए आपको ये डिस्टेंस ढूंढने, तो विल नेम इट A B C and this is D. ठीक है,
आई शिफ्ट दिस टू अदर साइड एंड थोड़ा छोटा भी कर लेते हैं, ठीक है। चलिए मैंने स्पेस बना दिया यहाँ पे। ये आपका डायग्राम है। आपको क्या निकालना है, अभी डिस्टेंस बिटवीन टू है ना, तो अभी हम लोग फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, पहला फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन 25 डिग्री इन ट्रायंगल, कौन सा 25 डिग्री है, ये वाला ADC। ADC ऑब्वियसली ये अपोजिट साइड है और ये बेस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना। सो tan 25 इज इक्वल टू DC अपॉन AC। DC मतलब 75 है, 70 है सॉरी, DC मतलब 70 है, AC मुझे पता नहीं है। tan 25, आप देखिए यहाँ पे कुछ नंबर आएगा ना तो वो डिवीजन में चला जाएगा, आपको क्रॉस करना है। तो मुझे ना यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगाना है। आई बी मेकिंग यूज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ओवर हियर, राइट। तो चलिए मैं कॉम्प्लीमेंट्री लगाती हूँ। आप देखिए अगर आपको नहीं याद आ रहा है ना तो आप tan 25 को देखिए, यहाँ पे आपका कुछ वैल्यू होगा, मैं दिखाती हूँ आपको, एक बार रिवाइज करा देती हूँ वापस से। tan 25 कितना है, 0.4663, 0.4663, ठीक है। कितना आएगा, 0.4663। अभी क्या हो जाएगा, AC इज इक्वल टू 70 अपॉन 0.4663। तो ये करना है क्या, ये करना है, मुझे नहीं करना है ना, तो ये अवॉइड करना है। टू अवॉइड डिवीजन लिखेंगे, टू अवॉइड डिवीजन we use complementary angle, complementary angle। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का लॉजिक भी मैंने बताया था, तो ये नहीं यूज करना है, ये भी नहीं यूज करना है। इसके जगह पे डायरेक्टली अभी ये वाला स्टेप आएगा, tan 25 के जगह पे लिखेंगे cot ऑफ 90 माइनस 25। कितना आ जाएगा, DC कितना है, 70 है, तो डायरेक्टली 70 लिख देते हैं, 70 अपॉन AC। cot 90 माइनस 25, 100 माइनस 25 75, मतलब ये 65, 70 अपॉन AC। मुझे cot 65 नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए रहेगा, मुझे अभी यहाँ पे tan चाहिए रहेगा। सो 1 अपॉन tan 65 इज इक्वल टू 70 अपॉन AC। देयरफॉर या फिर नेक्स्ट स्टेप में AC इज इक्वल टू, ये वैल्यू कितना होगा, 1 अपॉन tan 65। तो tan 65 का वैल्यू निकालते हैं हम लोग। सो tan 65 यहाँ पे मिलेगा मुझे, tan 65 मिल रहा है ये 2.1445, ठीक है, 2.1445। कितना आ रहा है ये यहाँ पे, या फिर 2.1445 इज इक्वल टू 70 AC। क्रॉस कर दीजिए तो क्या मिला आपको, AC इज इक्वल टू 70 इंटू 2.1445, 2.1445 ये मिल गया आपको, ठीक है। आपका ये आंसर निकालना है आपको, तो AC मिल जाएगा। हाँ, तो ये कितना है, 21445 और ये 7 5 35 3 then 28 31 3 28 31 3 10 1, सो 14 15 है ना, और 70 है, 4 जीरोस है, 4 डेसिमल पॉइंट्स है, 150 कितना आ रहा है, 150.1150 मीटर्स, ये AC मिला आपको, ठीक है। ये किसके लिए था, ये किसके लिए था, आपका ये वाला वैल्यू था, AC मिला मुझे, AC मिला 150.110। वैसे अभी आपको क्या निकालना है, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, उसके लिए निकालना है आपको। चलिए यहाँ पे ये वाला स्पेस जो है ये यूज करेंगे फॉर एंगल ऑफ एलिवेशन, कितना, 50 डिग्री, ठीक है। सो इन ट्राइंगल
DBC tan 50 will be equal to tan 50 is equal to DC upon BC. सो tan 50 कितना आएगा? ऑब्वियसली सेम ही आएगा, ऐसे ही आएगा, तो डिवीजन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यूज कर लेते हैं, cot ऑफ 90 माइनस 50 कर लेते हैं। यहाँ पे DC कितना है? 70 है अपॉन BC, तो cot 40 70 अपॉन BC। डायरेक्टली cot का भी मुझे tan रेसिप्रोकल कर देना है, 70 अपॉन BC, तो BC इज इक्वल टू 70 इंटू tan 40। तो tan 40 कितना है देखेंगे यहाँ पे चार्ट में, tan 40 कितना है? तो ये चार्ट है, tan 40 देख लेते हैं। tan 40 यहाँ पे 0.8391, 0.8391, ठीक है। तो 70 इंटू 0.8391, ठीक है। तो अभी आप कैलकुलेशन कीजिए, 8391 इंटू 7, 9 7 63, 6 21 27 2 56 58 587370 and 4 decimal places. So you have 58.7370. Okay, BC you have 58.7370. This is your BC value. Okay, you have AC value and you have BC value. How much is BC value? Which is 58.737. ओके, ये आपका BC वैल्यू है। तो अभी सब्ट्रैक्शन कीजिए टू फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पर्सन दिस A एंड B। तो क्या होगा? AB इज इक्वल टू 150.110 माइनस सब्ट्रैक्शन कीजिए 58.737, ठीक है। सब्ट्रैक्शन करने पर जो वैल्यू मिलेगा आपको 11 माइनस 6 और यहाँ पे 11 माइनस 8, यहाँ पे 10 1 और ये 6 9, कितना मिल रहा है? 91.373, ये आपका वैल्यू है। तो ये सब्ट्रैक्शन कर देना है, इन दोनों के बीच का आंसर ये मिल गया, ये आपका आंसर है। हाँ, ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट हैज बीन गिवन? सी द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ अ वर्टिकल टावर on level ground increases by 10 meters when the altitude of the sun changes from 45 degree to 30 degrees. Calculate the height of the tower correct to 2 decimal places. Okay, so at initial stage we have this theta which is 45 degree. So if this is the height of the tower, okay, ये टॉवर है, इसका हाइट भी दिया नहीं है स्पेसिफिकली, बट जब एंगल ऑफ एलिवेशन था 45, ये एंगल ऑफ एलिवेशन जब 45 डिग्री था, ओके, एट दैट टाइम दिस वाज द डिस्टेंस ऑफ द शैडो। ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो अगर मैं ABC ये बता रही हूँ, तो ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? तो 45 डिग्री है। और चेंज क्या हो रहा है देखिए, जब वो 30 डिग्रीज पे जा रहा है ना, तो इंक्रीज हो रहा है 10 मीटर से। तो मतलब ये ऐसे जब जा रहा है और अभी ये 30 डिग्रीज हो गया और इसको मैं D अगर बोल रही हूँ, तो ये 10 मीटर्स है, ये जो डिस्टेंस है वो 10 मीटर्स है, इंक्रीजेस बाय 10 मीटर्स, है ना। पहले 45 था और जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 हो गया, मतलब वो और बढ़ गया ना। हम लोग को पता है कि जो छोटा एंगल होता है वो दूर रहेगा, है ना। तो जब वो छोटा एंगल है 30 डिग्रीज है, तो वो जो शैडो का लेंथ है ना वो और भी बढ़ गया, ठीक है। वो कितने से बढ़ रहा है? 10 मीटर से बढ़ रहा है। तो बेसिकली ये ऐसा डायग्राम आपको मिला, ठीक है। आपको अभी इसको सॉल्व करना है। तो चलिए, इन ट्रायंगल स्टार्टिंग ही हम लोग करते हैं। इन ट्रायंगल, दो ट्रायंगल्स है, पहले 45 डिग्री के लिए ले लेते हैं, जब एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री था, व्हेन थीटा वाज 45 डिग्री, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। सो इन ट्रायंगल ABC थीटा इज 45 डिग्री, तो एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री है। सो tan लेंगे यहाँ पे, tan 45 विल बी इक्वल टू BC अपॉन AB। हाँ, अभी एक काम करते हैं, यहाँ पे x ले लेते हैं, ठीक है। पूछा भी क्या है आपको? कैलकुलेट द हाइट ऑफ टावर करके पूछा है। लेट हाइट ऑफ टावर
बी एक्स, ठीक है। सो tan 45 का वैल्यू 1 होता है। हाइट ऑफ द टावर BC है, जो हम लोगों ने x लिया है, AB। तो अगर मैंने क्रॉस कर दिया तो AB भी x में आ रहा है, AB इज ऑल्सो कमिंग इनटू x। ओके, ये मुझे याद रखना है कि मैंने हाइट ऑफ द टावर x लिया था, तो मुझे AB जो है वो भी x में मिला। अभी दूसरा ट्राइंगल जो है वो लेंगे, इन ट्राइंगल DBC। DBC क्या आएगा, tan 30 विल बी इक्वल टू BC अपॉन BD। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। BC कितना है, x है। BD कितना है, AD प्लस AB, मतलब DA प्लस AB, ऐसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट पे आ जाते हैं यहाँ पे ऐसे, तो क्या आ जाएगा 1/√3 x DA प्लस AB। तो DA AB भी x ही है, तो क्रॉस कर लेते हैं, DA प्लस x इज इक्वल टू √3 ऑफ x, ठीक है। x विल टेक इट ऑन द अदर साइड, तो DA, अच्छा DA तो ऑलरेडी गिवन है, तो DA की वैल्यू भी पता है हम लोग को। सो 10 प्लस x इज इक्वल टू √3 ऑफ x, x एक तरफ ले लेते हैं, सो √3 ऑफ x माइनस ऑफ x, माइनस ऑफ x मतलब 1 है, सो √3 माइनस 1 ऑफ x इज 10। तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिवीजन में आ गया ये, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, √3 माइनस 1 है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें पता है इरेशनल नंबर है ये √3 माइनस 1, तो रैशनलाइज कर लेंगे। √3 माइनस 1 का रैशनलाइजेशन √3 प्लस 1 √3 प्लस 1 होता है, ये x मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 10 ऑफ √3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, a माइनस बी a प्लस बी, मतलब 3 माइनस ये 1 है, ठीक है। तो ये 3 माइनस 1 आ गया, तो कितना आ गया 10, 1.732 प्लस 1 विल बी इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, 5 जा, तो ये 5 इंटू 2.732 ये आ रहा है। अभी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2732 इंटू 5 से, 10 15 16 1 36 3 13, आंसर आ रहा है 313660, और डेसिमल आ जाएगा यहाँ पे, सो 13.60 मीटर, ये आ गया आपका आंसर, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। यहाँ पे ना बस ये एक प्रॉब्लम है कि अगर बच्चों को ये समझ में ही नहीं आया कि 10 मीटर दिया क्या है ना, गलती से अगर आपने 10 मीटर यहाँ पे अगर ले लिया कि ये डिस्टेंस है, तो पूरा आंसर ही गलत होने वाला है ना। तो आप ओके, चलिए लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, हियर फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस क्वेश्चन दे हैव गिवन one word which is very much what to say we are familiar with, but अभी तक ना सारे जो questions थे उसमें angle of elevation दिया था, this is for the first time they have given angle of depression। देखिए आप क्या क्या दिया, an observer on the top of cliff 200 meters above the sea level observes the angle of depression of the two ships to be 45 degree and 30 degrees respectively. Find the distance between the ships if ships are on the same side and on the opposite sides of the cliff. This is not different as such. The only thing is I'm just trying to tell you angle of depression दिया है, हमें पता है angle of elevation angle of depression सेम ही होता है, बस पर्सपेक्टिव अलग है ना, ये पता है हमें, तो हमें देखना चाहिए क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है। ये क्लिफ है, क्लिफ मतलब एक पहाड़ के जैसा, और शिप है तो मतलब ये ऐसा है कि जहाँ पे समंदर है, तो यहाँ से ना वो जो इंसान है, दिस पर्सन इज ऑन द टॉप ऑफ द क्लिफ, सी ऑब्जर्वर on top of cliff, ठीक है। so this observer is there, this person is on the top of cliff, and what is he seeing, and this they have given also 200 meters above the sea level, so basically height is also been given to us for the cliff, height has been given to us which is 200 meters, obviously this is sea level, and one ship is there, it is at one point and other ship is at the other point, right, and what they have given is the distance between the ships if they are on the same side and on the opposite side. So I'm doing this condition 1 which is on the same side, ठीक है। and two angles are been given to us 45 degree and 30 degree, हमें पता है दो एंगल में से जो छोटा एंगल होगा वो दूर होने वाला है ना, तो छोटा एंगल जो है वो दूर होने वाला है, तो ये अगर मेरा
छोटा एंगल है वो होगा 30 डिग्रीज, वो कितना होगा 30 डिग्रीज, और ये जो है थोड़ा नजदीक वाला जो है वो है 45 डिग्री। ठीक है, तो नाम दे देते हैं हम लोग, ए बी सी डी, नामकरण दे दिया। तो अभी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और एक चीज दिया है उन्होंने, हाँ देखिए और क्या दिया है, हाँ नहीं सब लिख लिया हम लोगों ने, डायग्राम बहुत ज्यादा जरूरी है, डायग्राम गलत नहीं होना चाहिए। हाँ मेंशन किया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू शिप, मतलब डी एंड सी, ये शिप 1 है और ये शिप 2 है, ये शिप 1 है और ये शिप 2 है। ठीक है, तो डिस्टेंस बिटवीन शिप पूछा है, तो टू फाइंड क्या है पहले लिख लेते हैं यहाँ पे, टू फाइंड डी सी, ये बोला गया है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू शिप बोला गया है। अच्छा आपने अगर नोटिस किया ना 45 दिया है, प्रीवियस क्वेश्चन भी ना ऐसे ही था, आप देखिए यहाँ पे है ना, ये 45 दिया है, ये दिया था यहाँ पे क्वेश्चन में, और हाइट पूछा गया था, राइट, लेकिन ना अभी उल्टा दिया है उन्होंने, अभी क्या दिया है, तो ये हाइट दिया है, तो और भी आसान हो गया, और आपको ये पूछा गया है, राइट। तो हम लोग अभी स्टार्ट कर देते हैं, चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम, गिवन में क्या क्या लिख लेते हैं। So given angle of elevation for ship 1, for ship 1, ठीक है, तो क्या होगा, शिप 1 कौन सा है, 45 वाला है, so tan 45 will be equal to AB upon BC, so tan 45 1 होता है, AB 200 upon BC, so BC is equal to 200 meters। ठीक है, अभी एंगल ऑफ एलिवेशन सेकेंड शिप के लिए, एंगल ऑफ एलिवेशन फॉर शिप 2, तो tan कितना है 30 है, tan 30 इज इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी, tan 30 कितना होता है 1 अपॉन √3, ए बी कितना है 200, डी बी नहीं बता, क्रॉस कर देते हैं, तो यहाँ से नीचे से मैं ऊपर जा रही हूँ, तो डी बी कितना आ जाएगा 200 इंटू √3, 200 इंटू 1.732, ये कर देते हैं। तो दो डेसिमल अगर दो जीरोस के साथ कट हो गए तो 173.2, ये कैलकुलेशन करना आसान है, देखिए 2 से है ना, तो 4 ये पॉइंट है डेसिमल का, 6 14 1 और 346.4 मीटर्स, ये आ रहा है आपका आंसर, है ना। आपको क्या पूछा गया है, ये क्या है आपका डीबी है, ठीक है, डीबी मिल गया, डीबी मिल गया आपको और बीसी मिल गया। आपको पूछा गया है कि अगर वो सेम साइड पे होंगे, इफ ships are on same side, then you just have to subtract, dc is what, db minus of bc, so 346.4 minus of 200, I'll get 146.4 meters, and if they are on the opposite side, हाँ ये क्या था, ये कंडीशन 1 था, if ships are on the same side, if the ships are on opposite side, तो क्या होगा, बस ऐड कर देना है आपको सेकेंड कंडीशन, if ships are on opposite side, आप क्या करोगे, you just have to add, so DC क्या हो जाएगा, that is DB plus BC, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ऐड कर देना है, ठीक है, ये दोनों वैल्यूज ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर है, हो गया। देखिए कितना आसान था ये क्वेश्चन, है ना, कुछ डिफिकल्ट है नहीं। नाउ विल कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच इज दे हैव गिवन द डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ मिनट्स, लुक एट दिस, है ना, तो मिनट्स में दिया है, जैसे देखिए मैं बहुत सिंपल सा एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर मुझे मेरे घर से रेलवे स्टेशन जाना है तो 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, लेकिन मैं क्या बोलूंगी कि इट विल टेक 10 मिनट्स टू रीच द डेस्टिनेशन, राइट। तो हम लोग ना कभी कभी डिस्टेंस को ही टाइम के टर्म्स में बोल देते हैं, सो इन द सेम मैनर द क्वेश्चन इज आल्सो बीन गिवन डिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम। Okay, so this kind of questions are there which will be obviously little lengthy, and a very simple concept of speed is equal to distance upon time will have to require, like we'll have to use over here। चलिए देखते हैं without wasting time कैसे है ये।
Okay, a man on top of the vertical observation tower observes a car moving at a uniform speed coming directly towards it. It takes 12 minutes for the angle of depression to change from 30 degrees to 45 degrees. Now see, this person is on the top of tower and car is moving towards this person, है ना, मतलब वो जो इंसान है, कार जो चला रहा है वो बिल्डिंग के अंदर आ रहा है और ये टॉप ऑफ द टावर मतलब ये टेरेस पे खड़ा है, ये इंसान है वो टेरेस पे खड़ा है और यहाँ से वो देख रहा है और हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन मतलब ही एंगल ऑफ एलिवेशन होता है ना, बस पर्सपेक्टिव चेंज हो गया, वो ऊपर से देख रहा है इसलिए हम लोग बोल देंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन, लेकिन हमें पता है एंगल ऑफ डिप्रेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन सेम ही होता है। तो आई सजेस्ट यू कि जब भी एंगल ऑफ डिप्रेशन भी दे रहे हैं ना तो आप उसको एंगल ऑफ एलिवेशन के नजरिए से ही देखो ताकि आप कोई गलती ना करो, ठीक है। तो और हमें एक चीज भी पता है कि अगर दो एंगल्स है उसमें से जो छोटा वाला एंगल होता है ना वो दूर वाला एंगल होता है, तो मुझे पता है कि ये वाला जो एंगल है, ये छोटा वाला जो एंगल है वो 30 होने वाला है और ये जो बड़ा वाला एंगल है वो 45 होने वाला है ना। उन्होंने क्या बोला है, इट टेक्स 12 मिनट्स फॉर द एंगल ऑफ डिप्रेशन टू चेंज फ्रॉम 30 टू 45, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक का जो सफर है, इतना जो सफर किया उसने वो 12 मिनट्स लगा उसको, ठीक है। तो ये ए बी सी और ये अगर डी है तो उसने 12 मिनट्स लिया यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करने के लिए। हम लोग पकड़ते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को कवर करने के लिए वो टी मिनट्स ले रहा है, ठीक है। चलिए, गिवन टू कवर डिस्टेंस फ्रॉम कितना है 30 डिग्री टू 45 डिग्री, दैट इज A to B, car takes 12 minutes and to cover distance from B to C, car takes T minutes, ठीक है। कितना T मिनट्स ले रहा है, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वी नो दैट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है ना, एक ही रिलेशनशिप है टाइम और डिस्टेंस के बीच में ना, एक ही रिलेशनशिप है क्योंकि मुझे यहाँ पे डिस्टेंस ही चाहिए, मुझे डिस्टेंस ही चाहिए, है ना, इसलिए मेरे पास ये रिलेशनशिप है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। देयरफॉर लेट स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर मिनट, ठीक है। मैं क्या ले रही हूँ, स्पीड ऑफ कार x मीटर पर मिनट ले रही हूँ, ठीक है। सो अभी मेरे पास डायग्राम तो है ही, सो इन ट्रायंगल मैं डायरेक्टली ले रही हूँ यहाँ पे, इन ट्रायंगल बड़ा वाला ये 45 डिग्री वाला जो है ना, ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। DBC, DBC क्या आ जाएगा, tan 45 विल बी इक्वल टू DC अपॉन BC। हाँ, उसके पहले ये जो है ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम मैंने तो लिख लिया है ना। स्पीड क्या है, x है, डिस्टेंस कितना है मेरा, डिस्टेंस अगर AB है तो टाइम कितना होगा 12 मिनट्स है ना, उन्होंने दिया था तो वो कितना आ गया 12x इज इक्वल टू AB आ गया, है ना, ये हम लोग ने देख लिया है। वैसे ही अगर वो टाइम t मिनट्स है, वैसे ही एंड अगर मैं अगर बोल रही हूँ स्पीड तो सेम ही होगा, कार का स्पीड चेंज किया ही नहीं है ना, तो अगर x ही ले रहे हैं, बस अभी डिस्टेंस क्या लेंगे, BC लेंगे, ठीक है। BC अपॉन वो t मिनट्स ले रहा है, हाँ, और यहाँ पे ये भी कलर हम लोग येलो ही कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे BC इज इक्वल टू x इंटू टी हो जाएगा, है ना। तो A भी मिल गया और BC भी मिल गया, तो यहाँ पे मुझे दो चीजें मिल रही है, चलिए। सो इन ट्रायंगल, कौन सा वाला ट्रायंगल, DBC, DBC tan 45 विल बी इक्वल टू क्या आएगा, DC अपॉन BC, DC अपॉन BC, tan 45 1 होता है, DC नहीं है मेरे पास, BC है XT, सो DC इज इक्वल टू XT,
DC क्या मिला, xt मिला, ठीक है। इन ट्राइंगल, अभी कौन सा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, ये ADC, ADC tan 30 विल बी इक्वल टू DC अपॉन AC, DC अपॉन AC। tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। DC, DC, हाँ DC अभी मिला था ना हम लोग को, xt है, DC xt है। AC कितना है, AC AB प्लस BC है, AB प्लस BC है ना, तो AB प्लस BC डाल देते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू √3 इंटू, ये √3 भी उस तरफ चला जाएगा, √3 इंटू xt। AB और BC दोनों वैल्यूज है, तो चलिए सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, है ना। आगे अगर आ गया तो AB का वैल्यू और BC का वैल्यू 12x प्लस xt इज इक्वल टू, ये वैसे के वैसा ही यहाँ पे होगा, √3 xt आ गया। तो देखिए अभी x, हाँ एक काम करेंगे, 12 प्लस t x और ये √3 t इंटू x, ये x और ये x कट हो जाएगा। क्या करेंगे, 12 प्लस t इज इक्वल टू √3t, t एक तरफ लेके आएंगे तो √3t माइनस t कितना आ जाएगा, 12 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 इंटू t। तो मुझे क्या चाहिए, ऑब्वियसली यहाँ से यहाँ पे अगर हम लोग गए तो मुझे क्या चाहिए, t इज इक्वल टू ये √3 माइनस 1 हम लोग डिनोमिनेटर में ले लेंगे, रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, इरेशनल नंबर नहीं रखेंगे, है ना। तो ये आ जाएगा a प्लस बी ए माइनस बी मतलब 12, और यहाँ पे आ जाएगा ऊपर √3 प्लस 1, तो ये 6 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.732, मतलब ये 2.732 निकला। तो बस मल्टीप्लाई कर देना है, 2732 से 6 से मल्टीप्लाई करो, 12, 18, 19, 1, 42, 43, 4, 12, 16, सो 16.392 ये आ गया आंसर। ये किसके लिए है, ये टाइम मिल गया मुझे टी मिनट्स के लिए, BC के लिए, है ना। सून, हाँ, हाउ सून आफ्टर दिस द कार विल रीच द ऑब्जर्वेशन, मतलब यही है, ये सेम आंसर है। ये क्या आएगा, ये मिनट में आएगा, ये क्या है, क्योंकि ये टाइम है ना, तो डायरेक्टली टाइम में ही आंसर मिल रहा है, तो ये टाइम 16 मिनट्स और आगे 332 16.39 मिनट्स। चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन है ये, जहां पे हमें टाइम ही दिया है, देखिए 2 मिनट्स करके दिया है, मतलब ये ना टाइम वाला ही क्वेश्चन है। और जब भी टाइम वाला क्वेश्चन आएगा ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही लॉजिक लगाना है आपको, ठीक है। तो ऐसे भी ये क्वेश्चन आएंगे, आपको डरने की बात नहीं है कि अरे ये कुछ अलग ही है, नहीं, सिर्फ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही एक लॉजिक है। A man in a boat rowing away from lighthouse 150 meters high takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the lighthouse from 60 degree to 45 degree. Find the speed of boat. Okay, so here they have given speed of boat, they are asking, right? See now, a man rowing away from the lighthouse. Lighthouse मतलब टावर होता है ना, और ये हाइट दिया है, अगर ए बी लाइट हाउस है, हाइट है 150 मीटर्स, takes 2 minutes to change the angle of elevation of the top of the tower. तो सेम लॉजिक, तो जो दूर वाला है वो छोटा और जो नजदीक है वो बड़ा, है ना, सी, और ये डी। कितना टाइम ले रहा है ये, वो बोल रहा है 2 मिनट्स टू चेंज द एंगल ऑफ एलिवेशन, यहाँ पे ना वो 2 मिनट्स ले रहा है, ठीक है। और फिर पूछा गया है कि कितना स्पीड होगा उसका, और कुछ नहीं दिया है, इतना ही दिया है। तो चलिए ठीक है, तो डायरेक्ट ही मैं स्टार्ट कर रही हूँ अभी, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेट स्पीड ऑफ बोट bx मीटर पर मिनट, ठीक है, क्योंकि मिनट में दिया है ना और ये मीटर में है, सो मीटर पर मिनट कर देते हैं, वापस से लिख देती हूँ मीटर पर मिनट, ठीक है। तो कितना आएगा, स्पीड x है, डिस्टेंस dc है, वो टाइम 2 ले रहा है, 2x इज इक्वल टू dc। वैसे ही ये bc डिस्टेंस के लिए, टू कवर bc डिस्टेंस बोट टेक्स
टी मिनट्स, तो कितना आएगा, x इज इक्वल टू बी सी अपॉन टी, तो बी सी इज इक्वल टू एक्स इंटू टी। तो ये दो चीजें आपके पास है अवेलेबल अभी, है ना। इसके बाद आप क्या करोगे, सेम लॉजिक, ये क्या मिल गया आपको, ये 2x और यहाँ पे मिल गया tx, और फिर आगे सॉल्व करना आपके लिए दिक्कत की बात नहीं है ना। आप क्या करोगे, सेम इन ट्रायंगल ए बी सी क्या होगा, tan 60 इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी, tan 60 √3 होता है, ए बी कितना है 150, बी सी इज tx, tx इज इक्वल टू 150 अपॉन √3। अच्छा, यहाँ पे डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग इसको रैशनलाइजेशन कर देंगे और 150 इज डिविजिबल नो, तो यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो मुझे मिल गया tx का वैल्यू 50 √3, मैं फिलहाल के लिए ऐसे ही रख देती हूँ यहाँ पे। और कौन सा वाला, एडीसी के लिए, इन ट्रायंगल एडीसी भी कर लेते हैं, इन ट्रायंगल एडीसी tan 45 विल बी इक्वल टू ए बी अपॉन डी बी। सो tan 45 1 होता है, मतलब हम लोग ए बी और डी बी का वैल्यू सेम है। ए बी कितना है, ए बी इज गिवन बाय द वे, है ना, ए बी दिया है 150, तो वो डालते हैं ना यहाँ पे, ए बी इज गिवन हाउ मच 150, देयरफॉर डी बी इज 150, ये भी मिला हम लोग को। तो क्या करेंगे, पूछा क्या उन्होंने, स्पीड ऑफ द बोट पूछा है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। dB इज इक्वल टू DC प्लस BC, dB 150 मिला, DC 2x है, BC XT है, ठीक है। तो यहाँ पे TX का वैल्यू भी है, XT का वैल्यू 50 √3 है, तो ये TX है, मतलब ही क्या है ये, you write down this is our TX is BC, okay, TX is nothing but BC, तो ये TX मतलब BC है, 50 √3 है, ठीक है। You take this on the other side, 150 minus 50 √3 is equal to 2x। so अभी आप इसको सॉल्व करोगे, 150 इंटू √3 क्या होगा 1.732, है ना, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हो, 150 इंटू 1.732 एंड डिवाइड इट विथ 2, और ये x का वैल्यू जो है वो आप मुझे सॉल्व करके दोगे, ये x का वैल्यू आपको सॉल्व करना है, मैंने आपको पूरा सॉल्व करके दिया है, ठीक है। आपको x ही चाहिए क्योंकि स्पीड ऑफ बोट बोला गया है ना, तो आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको x चाहिए था, आपको x मिल जाएगा, ठीक है। सी हाउ सिंपल इट इज, है ना। तो आपको इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है इसमें, द इम्पोर्टेंट पॉइंट इज व्हाट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही बस एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसमें। एक देते हैं वो लोग और दूसरा है ना, उसके लिए हम लोग को टाइम t पकड़ना है कि हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग, सो इट इज टेकिंग t minutes, like that we have to understand. Fine, I hope so now you are able to understand and have confidence in solving such kind of questions. I understand that कि ये थोड़ा इनिशियल लेवल पे आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट जाएगा, लेकिन आप बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस करोगे ना तो आपको बहुत इजी लगने लगेगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, है ना। चलिए नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। हाँ ओके, चलिए दिस क्वेश्चन इज फॉर यू, ओके, दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू गाइज, बट आई विल बी डेफिनेटली हेल्पिंग यू विद द डायग्राम, ठीक है। चलिए देखते हैं। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू टावर्स इज 120 मीटर्स, मतलब दो टावर्स है और उनके बीच का डिस्टेंस है 120 मीटर्स। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द फर्स्ट टावर एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर, मतलब क्या, एक छोटा टावर है एक बड़ा टावर है, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ क्या बोला है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड टावर, अच्छा मतलब ये जो सेकेंड टावर होने वाला है ना वो छोटा टावर है, ठीक है। द सेकेंड टावर इज द स्मॉल टावर, व्हाई, बिकॉज एज ऑब्जर्व फ्रॉम द सेकेंड टावर बोला गया है ना। तो यहां से देख रहे हैं ये सेकेंड टावर है, ये सेकेंड टावर है और ये फर्स्ट टावर है, हाँ यहाँ से देख रहे हैं। और क्या दिया है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप एंड डिप्रेशन ऑफ द बॉटम टावर। मैंने कैसे कंक्लूड किया कि फर्स्ट टावर ये ऊंचा टावर होने वाला है, क्योंकि एलिवेशन ऑफ द टॉप बोला गया है, मतलब यहाँ से वो ऊपर की तरफ भी देख रहा है ना, और यहाँ से ही वो नीचे की तरफ भी देख रहा है। तो ये जो बेसिकली ये फर्स्ट टावर है ना, ये थोड़ा ऊंचा टावर है, ये बहुत ऊंचा टावर होने वाला है ऐसे, और वो ऊपर भी देख रहा है और वो नीचे भी देख रहा है, समझा आपको।
तो यहाँ से ये लाइन ऑफ साइट उसका ये ऐसे है, दिस इज द लाइन ऑफ साइट, ठीक है। ये उसका एंगल ऑफ इलिवेशन है, यहाँ पे वो टॉप ऑफ द टावर है ना, ये फर्स्ट टावर है, ये फर्स्ट टावर है, ये सेकंड टावर है, एज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकंड टावर बोला गया है, ठीक है। तो एंगल ऑफ इलिवेशन पहले दिया है जो 30 डिग्रीज है, ये एंगल ऑफ इलिवेशन है 30 डिग्रीज, और एंगल ऑफ डिप्रेशन है 24 डिग्रीज। तो ये होगा उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, यहाँ से देख रहा है वो नीचे की तरफ, तो 24। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपको ये वाला लेना है 24। आप इसके लिए भी करोगे तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आपको अगर ऐसे भी चलेगा तो मतलब ये ट्रायंगल, आपको दो ट्रायंगल कौन से, एक ये वाला ट्रायंगल आ जाएगा और एक दूसरा वाला ये ट्रायंगल आ जाएगा। अगर मैं कलर से दिखा रही हूँ तो ये वाला जो है, ये जो है वो दूसरा है। तो ऐसे करके दो ट्रायंगल आ रहे हैं आपको, ठीक है। तो ए बी सी डी ई, आपको बस नेमिंग कर देना है। यहाँ पे ये 120 मीटर्स भी दिया है, ये 120 मीटर्स भी देके रखा है, और कुछ इंफॉर्मेशन दिया है नहीं दिया है, बस एंगल वाला इंफॉर्मेशन दिया है और ये डिस्टेंस का इंफॉर्मेशन दिया है, इतना ही डिस्क्रिप्शन में दिया है आपको, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कौन से लेने हैं आपको, एक ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, ये ट्रायंगल लेना है। तो क्या लोगे आप, टैन ही लोगे। ये यहाँ पे ये जो बीसी डिस्टेंस है वो भी 120 मीटर्स ही होने वाला है, ठीक है। तो tan 30 लोगे, tan 30 इज ए बी अपॉन बीसी, और बीसी कितना है 120 होने वाला है, ठीक है। तो ये दिया है ए बी अपॉन 120, ये देखे रखा है आपको। और tan 30 कितना होता है, 1/√3 होता है। तो ये 1/√3 मतलब 120, और आपको डरने की जरूरत नहीं है इसमें कि 1/√3 दिया है। तो क्या करोगे आप, जैसे मैंने बोला था √3 इरेशनल नंबर होता है, तो रैशनलाइज कर दो, और 120 इज डिविजिबल ना, सो 120/3 इंटू √3, तो ये वैल्यू मिल जाएगा 40, सो 40√3 आ गया। तो ए बी का वैल्यू मिल गया आपको 40√3। वैसे ही आपको कौन से ट्रायंगल के लिए, बी डी सी, दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, बी डी सी, ये दूसरा ट्रायंगल होने वाला है, उसके लिए क्या लोगे आप, tan 24 लोगे। tan 24 विल बी इक्वल टू बी डी अपॉन बी सी लोगे, है ना। बी डी पता नहीं है लेकिन हाँ हम लोग को बी सी पता है, सो बी डी, बीसी कितना है 120 है ना। और tan 24 कहां से लोगे आप, tan 24 के लिए आपको चार्ट लगेगा, है ना, टैंजेंट वाला चार्ट लगेगा जो 24 पे आ रहा है ना, ये वाला पॉइंट आएगा कि जिसमें 0.4452 0.4452 ये आ रहा है। तो आपको बस वैल्यू डालना है 0.4452, और इसमें तो कुछ जरूरत भी नहीं क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा 4452 इंटू 120, ये आ जाएगा। आपको कैलकुलेशन कीजिए आप, बीडी भी मिल जाएगा, ए भी ऑलरेडी मिला है यहाँ पे, तो आपको वैल्यूज मिल जाएंगे। ऐड कर दो आप, ए बी एंड बीडी को ऐड कर दो, आ जाएगा आपका आंसर, ठीक है। ये आपके लिए, ये आपका होमवर्क है, आप होमवर्क करोगे और मुझे कमेंट में आंसर दे दोगे, ठीक है। सो हियर वी आर डन विद ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हाटएवर आर बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। तो ये स्पेसिफिकली मैंने 10 क्वेश्चंस किए हैं, 11 क्वेश्चन जो था आपके लिए होमवर्क है, and you are going to solve it and send me the answer into the comments. if any doubts are there तो भी आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।